Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you Unit 8 quadrilaterals. What is a quadrilateral? In 7th class it is defined to you and 8th में भी आपने किया होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में and now it is full-fledged chapter. Quadrilateral is a closed figure having 4 sides, 4 vertices, 4 angles. As like this is a figure. It can be a quadrilateral because it has 4 sides, 1 2 3 4. It is not possible, it is not urgent that all the sides are equal. Quadrilateral has different sides. There are 4 angles in the quadrilateral, 1 2 3 4, and these point is called the vertex या vertices. 1 2 3 4 means A B C D. These are the vertices of quadrilateral. What are the different shapes of quadrilateral? Quadrilateral can be in the form of rectangle. Okay, it has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. It can be in the form of square. इसका नेम दे देने हैं A B C D something उसी के अकॉर्डिंग. And all the angles of a rectangle and a square are of 90 degree. You know very well about it. ये तो आप 7th क्लास से पढ़ते आ ही रहे हो. Even 6th class में भी किया होगा. A rhombus is also a form of quadrilateral. It has 4 sides, equal sides even. All the sides of this has equal. Its parallel sides are only equal. All the sides of a rhombus are also equal. 4 angles are not equal to 90 degree. It can be different. It can be in the form of a trapezium, means 2 parallel sides and 2 non-parallel sides. It can be in the form of a parallelogram, as like this one. Parallelogram की भी opposite sides are equal, opposite angles are equal. Similarly इसके भी opposite angles rhombus के भी equal होते हैं. ये वाला angle इसके equal होगा, this angle equal to this angle. It can also be in the form of a kite. Means जो kite होता है इसकी 2 sides equal होती हैं adjacent sides, but इसका ध्यान रखना opposite नहीं, adjacent sides are equal. 2 opposite angles are also equal. अब it is the form of a parallelogram. Square and rectangle is not in the form of a parallelogram क्योंकि opposite sides तो हो गई equal, but opposite angles are also equal, but its diagonals are different. Its diagonals are same, its diagonals are same, its diagonals are different. And trapezium is not also a form of parallelogram. Kite is not also a form of parallelogram. Mainly इसमें हम लोग parallelogram consider करेंगे. Now I explain you theorem number 1. Theorem number first is a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. जो diagonal होता है parallelogram वो इसको 2 congruent triangles में divide कर रहा है. As like here ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. Now parallelogram है तो इसके parallel sides के according transversal हमें given है तो we can adjust here which angle, alternate angles. 2 parallel sides with the transversal form alternate angles, corresponding angles. vertically opposite angles होते हैं intersecting sides के according. तो हम यहाँ पे alternate angles एडजस्ट कर सकते हैं. दोनों triangles एडजस्ट करेंगे. गिवन क्या है इसमें अब, क्योंकि गिवन टू प्रूव प्रॉपर तो लिखा नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा. गिवन है ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. AC इसका diagonal है. टू प्रूफ क्या करना है हमें अब, we have to prove that
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए। एक तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग शो कर देना। एक ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और थर्ड कंडीशन क्या लेंगे, थर्ड शुड ऑल्सो बी हेयर, वी कैन एडजस्ट हेयर कॉमन साइड। तो पहले तो हो जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। These are alternate angles. Angle ACB is equal to angle DAC. These are also alternate angles, and one we can adjust here, AC is equal to AC common in both. So triangle ABC is congruent to triangle ACD। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। एंड सॉरी, दिस इज़ द प्रूफ। वो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल एडजस्ट कर ले, पर यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में लेने पड़ेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। तो इट विल बी बाय 2 एंगल्स हैं, एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी rule. Second theorem is in a parallelogram opposite sides are equal. 8.2 पैरेललोग्राम की यही फिगर ही बना लो as like this one। थोड़ी सी स्लांटिंग साइड्स बना लेना, ये रेक्टेंगल की शेप में बन गई है थोड़ी। ABCD, दिस इज द डायगनल तो इसमें लेना ही पड़ेगा, तभी 2 ट्राइंगल एडजस्ट करेंगे। पैरेलल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो बाय CPCT ये साइड्स हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन सॉल्व। ऑरली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर एक बार। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड AC इज़ द डायगोनल। दिस इज इन गिवन टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। टू प्रूव में हमें ये लेना है। अब प्रूफ में इसी तरह से हम दोबारा दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यही कंडीशंस आ सकती हैं इसमें, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, कॉमन साइड इक्वल हो गई, यहाँ तक सेम आ जाएगा। तो देन वी कैन एडजस्ट हेयर AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इसी तरह से AD इज इक्वल टू BC, दिस इज ऑल्सो बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंसी में आपने 8th में भी किया होगा और 9th में भी अभी करवाया लास्ट वीडियोस में। और वी कैन एडजस्ट इट लाइक दिस। Now the theorem number 3rd is in each pair of opposite sides of quadrilateral, if each pair of opposite sides of a quadrilateral equal, then it is a parallelogram। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। I will explain this question। फिगर ऐसे ही बना लो। 8.3 गिवन क्या है, ABCD। अब इसको लिखना है हमने क्वाड्रिलेटरल। फिगर तो बेशक पैरेललोग्राम की बनी है, बट इसको लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये एंगल्स हमने किसी तरह इक्वल प्रूव कर दिए तो वी कैन एडजस्ट इट एज पैरेललोग्राम। एंड बिकॉज वी नो दैट alternate angles formed by a parallelogram, ये एंगल्स इक्वल alternate angles बनेंगे और it is formed by a parallelogram, तो ये साइड्स पैरेलल होगी और पैरेलल होने के कारण it is a parallelogram। ABCD is a quadrilateral and given क्या है इसमें, और AB is equal to CD, opposite sides equal दी हुई है ना, and BC is equal to AD, it is also given to us। टू प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव हेयर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर प्रूफ विच ट्रायंगल वी हैव टू एडजस्ट, एंड एक यहाँ पे लिखो AC इज द डायगोनल, उसके बाद है ABCD इज इक्वल टू दिस वन एंड BC इज इक्वल टू दिस वन। In triangle ABC and triangle ACD, AB is equal to CD given है,
BC is equal to AD is also given. एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? एंगल तो हम इसमें कोई ले नहीं सकते क्योंकि गिवन में है ही नहीं कुछ भी, बट वी कैन एडजस्ट हियर कॉमन साइड. अगर कॉमन एंगल होता तो वो ले सकते थे, बट कॉमन एंगल भी नहीं है तो कॉमन साइड ले सकते हैं हम. थर्ड कंडीशन भी इसमें ज़रूरी लेनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है. दिस इज कॉमन. सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ACD. So angle BAC is equal to ACD. It is by CPCT and it is by side congruency rule. ये रूल्स वगैरह ज़रूरी लिखने, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे. एंड वन वी कैन एडजस्ट हियर BCA is equal to CAD. It is also by CPCT. बट अब यहाँ पे दे दो कि ये कौन से एंगल्स हैं. These are alternate angles formed by two pairs of parallel lines and a transversal. एक ट्रांसवर्सल भी है, दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस भी हैं. सो ABCD इज क्या है? इज अ पैरेललोग्राम. नाउ थ्योरम नंबर 4th, 5th and 6th, 7th भी है, but I will not explain it today. I will explain example number 1st today so that you can solve some of the questions of exercise. एक्सरसाइज 8.1 में नियर अबाउट 12 क्वेश्चंस हैं, तो आप नियर अबाउट 2-3 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो. ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन एग्जाम्पल नंबर 1st ओनली एंड रिमेनिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. हियर इज एग्जाम्पल नंबर 1st. शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल एक राइट एंगल है. एज लाइक ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle और इसका 90 डिग्री के एंगल्स प्रूव करने हैं, तो एक एंगल तो हमें इसका 90 डिग्री का लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी के एंगल्स प्रूव कर देंगे. अब इसमें गिवन क्या है? ABCD is a rectangle टू प्रूव क्या करना है? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA. ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ. रेक्टेंगल किसकी फॉर्म में होता है? जो रेक्टेंगल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज इन द form of a parallelogram and angle of a rectangle, assume कर लो, let one angle of a rectangle is 90 degree. That is angle A is equal to again 90 degree. अब angle A and angle B, these are the angles on same side of transversal या co-interior angles. Because AD is parallel to BC and AB is a transversal. Here AD is parallel to BC and AB is a transversal. So angle DAB ये तो हमने लिया ही हुआ है, प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू किसके हैं? 180 डिग्री के. दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये 90 डिग्री का है, तो ABC कितना हो जाएगा? ABC इज इक्वल टू 90 ऑन द राइट विल बी माइनस 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 90. एक एंगल हो गया फाइंड.
अब इस ए बी सी के अकॉर्डिंग बी सी डी फाइंड कर लेंगे। ये भी कोइंटीरियर एंगल्स बन गए। सिमिलरली ले लो क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सारी कंडीशन। सिमिलरली एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 90। इसमें से ये 90 है तो ये कितने का हो गया फिर 90 का। इसी तरह सिमिलरली बी सी डी प्लस सी डी ए इज इक्वल टू 180। ये एंगल हमें पता है अब 90 का है तो ये कितने का हो गया 90 का। कुछ सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री। बस यही हमें प्रूव करना था। मीन्स वी हैव टू एडजस्ट हेयर एंगल ए बी सी। सिमिलरली एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। कंडीशन ज़रूर लिखनी है को इंटीरियर एंगल्स। इसको आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगता है यू कैन राइट। हाँ जी, तो दिस इज़ 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं। तो बी सी डी कितना हो गया इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 90। सेकेंड भी हो गया। नाउ सिमिलरली एंगल बी सी डी प्लस सी डी ए इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180। ये हम फाइंड कर चुके हैं 90 प्लस सी डी ए इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स सी डी ए कितना हो गया 189 माइनस 90 दैट इज 90। ये भी हो गया। सो ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री ईच। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। एंड नाउ you have to solve exercise questions and these examples and theorems also. Till then, thank you.